ma'am, as you told that air is a necessary condition for combustion, but can you please explain me how is it a very important condition? Yes, of course. With the help of one activity, I will explain this to you. Let's see. Okay, what you have to do here? Fix a lighted candle on a table. Put a glass chimney over the table and rest it on a few wooden blocks in such a way so that air can enter the chimney, as you are seeing in the first condition. That is A. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table and again observe the flame. What do you think? Then put a glass plate over the chimney. Observe the flame again. Now the candle burns freely in A condition because air enters the chimney from below. I think आपको समझ आ गया होगा पहले वाले सेटअप में हमने क्या करा था, वुडन ब्लॉक्स रखे हुए थे, है ना। तो आपने जो चिमनी बनाई थी ना, जो ऊपर से जो कवर रखा था आपने, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो जो कवर था आपका वुडन ब्लॉक के कारण वहाँ से स्पेस बन गई थी, तो स्पेस से एयर कंटिन्यूअसली अंदर आ रही थी, इसलिए आपकी कैंडल बर्न कर रही थी। The candle burned freely in A. Now the candle stops burning in B because air does not enter the chimney from below. Second condition में देखो, जब हमने wooden blocks को remove कर दिया तो क्या हो गया, एयर की सप्लाई रुक गई, इसलिए अब हमारी कैंडल बुझ गई। और तीसरी कंडीशन में the candle stops burning when what? Candle does not burn in C because air is not available, because you just put a cover on the chimney. आपने क्या करा था, चिमनी के ऊपर आपने एक कवर लगा दिया था, है ना। तो इसके कारण क्या हो गया, आपने एयर की अवेलेबिलिटी को ब्लॉक कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एयर नहीं मिलेगी तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ओके, नाउ यू गॉट इट? Yes, ma'am. Now I got it. Now move to the next topic, that is ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire and burns is called its ignition temperature. Okay? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, ठीक है, उसको हम उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक आप उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसको गर्म ना करो, है ना। Different substances have different ignition temperature. For example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. Okay? तो देखो क्या होगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो आसानी से आग पकड़ लेगा, और जिसका ज्यादा होगा वो उसको ज्यादा समय लगेगा। देखो, substances which have very low ignition temperature can easily catch fire with a flame are called inflammable substances like petrol, alcohol, LPG and CNG. क्या हो गया,
ये ज़्यादा खतरनाक होंगे। क्यों? क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर लो है। लो इग्निशन टेम्परेचर होने के कारण वो बहुत आसानी से आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर समझ आया आपको? चलो, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ combustion. So there are three main types of combustions. They are rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. So let's start with rapid. Rapid means fast. So in this combustion, it is a combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. तो रैपिड कम्बशन कैसा कम्बशन है? एक ऐसा कम्बशन जिसमें सब्सटेंस बहुत तेजी से जलता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ LPG। नाउ द नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस, है ना? Spontaneous is what? It is a combustion in which a substance burns spontaneously and produces heat and light without the help of external heat. है ना? अब यहाँ without the help of external heat यानी यहाँ पे आपको क्या नहीं करना होगा? बाहर से external heat नहीं अप्लाई करना पड़ता है ना? रैपिड कम्बशन के लिए क्या था? एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, बट फॉर स्पॉन्टेनियस कम्बशन एक्सटर्नल हीट इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइक phosphorus burn spontaneously at room temperature, है ना? Now come to the next one, that is explosion. Explosion is what? It is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light and sound also with the help of heat or pressure. Explosion हम कब कहेंगे? जब combustion के दौरान substance अचानक से, है ना, burn suddenly, अचानक से जलता है और जलने पर heat, light और sound भी produce करता है। कब करता है? जब हम उसे एक प्रॉपर हीट और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लोजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंप्लीट combustion. Okay, so the combustion in which the substance gets completely burned to form the highest oxide of substance is called complete combustion. Complete यानी पूरा, है ना? कब हम कहेंगे कि complete combustion हुआ है? जबकि combustion के दौरान क्या हो, हमारा जो substance है वो पूरी तरह से burnt हो जाना चाहिए। जैसे जब किसी फ्यूल को ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। सो दिस बिकम द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट combustion. Now if we just move to the incomplete combustion, so the combustion that take place in the presence of insufficient oxygen और एयर यानी अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या एयर की उपस्थिति में जब किसी सब्सटेंस को बर्न करा जाता है तो उसे हम इनकम्प्लीट कम्बशन कहते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट कम्बशन के रिजल्ट पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट और लाइट एज अ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ combustion. Okay, now move to the how do we control fire. इतने देर से तो हम combustion की बात कर रहे थे, फायर की बात कर रहे थे। अब ये भी तो जाने अगर कभी आग लग जाए तो हम इस आग को कैसे रोक सकते हैं। चलिए, the conditions necessary for producing fire are fuel, air, heat. Okay, so
first, fire can be controlled by removing any one or more of these conditions. देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत आसान है भाई। जो चीज़ें आग के लिए आवश्यक थी, उन तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने आपको बताया था कि भाई एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। तो ये तीनों वो चीज़ें हैं जिसके कारण आग लगती है। इन्हीं चीज़ों को आप हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। और मेरे ख्याल से आप सबने, जब हमारे स्कूल में हमने एक वर्कशॉप करी थी जहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि अगर आग लग जाए तो अपना बचाव कैसे करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में आई थी ना फायर एक्सटिंग्विशर टीम आई थी, याद है आप सबको? हाँ, अब वैसे ही याद करना, फायर एक्सटिंग्विशर की पिक्चर्स भी है, 3 टाइप के अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स बताए थे उन्होंने। देखिए, a fire extinguishers cut off the supply of air or brings down the temperature of the fuel or both and controls the fire. So how can it control who? Fire extinguisher. Fire extinguisher किस तरीके से काम करता है? पहला कि fire extinguisher cut off the supply of air. क्या करता है? जो सब्सटेंस है ना, जो फ्यूल है, जो बर्न हो रहा है, जब तक उस फ्यूल को एयर मिलती रहेगी तब तक बर्निंग होती रहेगी, है ना। तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब इसमें आपको याद है उन्होंने हमें बताया था कि पानी का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है ना। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है ना बेटे आपको, ये देखो ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन भी करके बताया था उन्होंने। यहाँ पे एक आदमी कर रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ पे दूसरा क्या कर रहा है? फायरमैन पानी का इस्तेमाल कर रहा है। तो अलग अलग फ्यूल के बेस पे हम अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं हम? 2 तरीके उन्होंने बोला, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। भाई अगर फ्यूल को उतना इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा तो फ्यूल आग ही नहीं पकड़ पाएगा। तो हम क्या करते हैं? वो जो फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे, वो टेम्परेचर उसको ना मिल सके तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर by using water or by using carbon dioxide. So water is the most common fire extinguisher. It can be used only when materials like wood, paper, etc. are on fire. And water cannot be used if electrical equipments are on fire because water conducts electricity and can harm those trying to put out the fire. ठीक है, हमने बताया ना आपको कि हम कौन से टाइप का मेथड यूज करेंगे फायर को कंट्रोल करने के लिए। ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आग किस कारण से लगी है ना। आपका जो बर्निंग फ्यूल है वो कौन सा है। चलिए, तो क्या बोला? पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप पानी का इस्तेमाल ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक के कारण या किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो वो आग फैल जाएगी, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। दूसरी बात, पानी का इस्तेमाल हम ऑयल या पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जो हमारा पेट्रोल है या ऑयल है वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। पानी और ऑयल मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा? ऑयल तो ऊपर आ गया, मिक्स नहीं हो रहा ना, ऑयल ऊपर आ गया तो आपकी जो आग है वो तो बुझेगी ही नहीं, फ्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा एयर के, है ना। Now the second is by using carbon dioxide. Okay, so यहाँ पे क्या आएगा? Carbon dioxide is the best fire extinguisher to put out the fire caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipment. ध्यान रखें बच्चों, ऑयल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर
and it covers the fire and cut off the supply of oxygen and puts out the fire. कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने के कारण एयर से भारी होती है, इसलिए वो क्या करती है, कवर्स द फायर को कवर कर लेती है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर को ब्लॉक कर देती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर्स. ठीक है, तो ये जो सिलेंडर्स होते हैं ना, कौन से, फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो सिलेंडर्स होते हैं, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है वो हाई प्रेशर पे लिक्विड कंडीशन में फिल करी जाती है. Chemicals like sodium bicarbonate, that is also known as baking soda, potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. Okay, तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसमें अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है. ठीक है, so this is about the methods of controlling fire. One more method is here, that is by using a blanket. When a person's clothes catch fire, a blanket should be wrapped around his body to cut off the air supply, thereby extinguishing the fire. अभी अगर मान लीजिए है ना कि हमने कहीं देखा कि क्या हो गया, किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग गई है, किसी व्यक्ति को आग लग गई है, तो उसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को किसी कंबल से लपेटा जा सकता है. ऐसा करने पर क्या होगा, आग को क्या नहीं मिल पाएगी, एयर से कांटेक्ट टूट जाएगा आग का और क्या हो जाएगा, जिसके कारण आग बुझ जाएगी. तो ये कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम फायर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं.